स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। बेटा, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में बेटा हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका क्या फंक्शन है और उनकी डेफिशिएंसी हो तो क्या सिम्टम शो होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। आज बेटा हम बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेटा पोटाशियम की। पोटाशियम बेटा किसी भी स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट का हिस्सा नहीं है जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस था, but it is a very important enzyme activator and regulator. So it activates and regulates the functioning of the several enzymes in the plant body. So if we talk about the function, first function तो बेटा यही हो जाएगा कि enzymes को रेगुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। इट मेंटेन्स द सेल टर्जिडिटी। बेटा सेल के अंदर वाटर कंटेंट कितना है, सेल टर्जिड रहेगा या फ्लैसिड रहेगा, स्वेलन अप होगा, क्या उसके अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी रहेगी, वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, वो कौन डिसाइड करता है बेटा, पोटाशियम डिसाइड करता है। इट ऑल्सो मेंटेन द बेटा वाटर बैलेंस इन द सेल। इट हेल्प्स इन बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब पोटाशियम आयंस बेटा अंदर जाते हैं स्टोमेटा के अंदर, when the potassium ion accumulate in the guard cells of the stomata, the water enters in the guard cell and cell become turgid and stomata become open. So बेटा तीनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है। टर्जिडिटी को भी डिसाइड करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को भी डिसाइड करता है और वाटर बैलेंस को भी डिसाइड करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन बेटर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, सपोर्ट्स फोटोसिंथेसिस एंड मेंटेन द आयनिक बैलेंस ऑफ द cell. Beta, if we see about the opening and closing of the stomata, so as I told you, these are the guard cells. Okay, so when the potassium ions accumulate in the guard cell, there is influx of potassium ions. When there will be high potassium ion concentration in the guard cells, the water will enter in the guard cell. The water will also enter in the guard cell and it will make the cell turgid. When the guard cell is turgid beta, the stomata is open. So it help in opening and closing of stomata. Better when the potassium ions move out, water also leaves the guard cell and guard cell become flaccid and the stomatal pore is closed. So potassium indirectly beta regulates the entry of the CO2 because it opens and closes the stomata. It helps in transpiration because the transpiration in the plant cell will occur through stomata, and it help in the water conservation. If beta deficiency of potassium is there, then what will happen? Chlorosis will happen, yellowing of the leaves, necrosis will happen, dying of the leaves, browning of the leaf margin. If leaf is like this, the margins of the leaf from here will become brown in color. They will reduce the growth of the plant, and with the older leaves show the symptom first. It means it is an mobile nutrient. First it will, older leaves will show the effect, then the younger leaves will show the effect. So if we talk about overall potassium, it is enzyme activation, it helps in stomatal movement and it helps the water balance of plant cell. Now beta, let's talk about the next macronutrient, that is calcium. Calcium has a very important role in the structural role in the plants because it forms the cell walls. It maintains the cell membrane stability, that the cell membrane will become stable if the calcium ions are there. It helps in the cell division, cell elongation. It helps in better root and shoot tip growth. If the growth of the root and shoot tip is more, the growth of the plant is more. So indirectly it helps in the growth of the plant. It help in development of meristematic tissue beta. Meristematic tissue are the tissues which are present on the tip. So when they the meristematic tissue are the growing tissue which help in the growth of the plant. तो जितना ज़्यादा meristematic tissue का development होगा बेटा, उतना ज़्यादा plant की growth होगी, तो it help in growth of the plant. But it also help as act as a cellular signaling molecule. जितने भी signals जाते हैं बेटा from one plant cell to another plant cell, that is controlled by, or it helps them to send, that is calcium. Now let's talk about beta deficiency symptoms. Beta, the first deficiency symptoms will be shown by young and actively growing tissues. Means it is a immobile nutrient. अभी तक जितने हमने न्यूट्रिएंट्स किए बेटा, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सभी क्या थे, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स थे। पहले पुरानी लीव्स शो करती थी, फिर न्यू लीव्स शो करती थी, बट इट इज इमोबाइल। तो पहले जो न्यू डेवलपिंग टिश्यू है वो सिम्टम्स को शो करेगा, फिर ओल्ड लीव्स शो करेंगी बेटा। सिम्टम्स इंक्लूड डेथ ऑफ रूट टिप्स, शूट टिप्स,
क्यों बेटा? क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आएगा और वो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो देयर विल बी डाइंग ऑफ द रूट एंड शूट टिप। इफ द रूट टिप और शूट टिप बेटा नहीं अच्छे से डेवलप करेंगी या उनकी डेथ हो जाएगी, तो देयर विल बी नो डेवलपमेंट ऑफ द यंग लीव्स। जो टिश्यूज है, यंग टिश्यू है, उनकी डिफॉर्मेशन हो जाएगी। ओवरऑल बेटा रिड्यूस कर देगी ग्रोथ को प्लांट की। सो कैल्शियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट का, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम। दैट इज अ सेल वॉल के अंदर उसका फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन में है, सेल डिवीजन में है। और डेफिशिएंसी पहले बेटा कहाँ शो होती है? यंग टिश्यूज के अंदर शो होती है, बिकॉज इट इज अ इमोबाइल न्यूट्रिएंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेटा नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज मैग्नीशियम। Magnesium is also beta very important nutrient because it is the central atom of the chlorophyll. जो chlorophyll molecule है उसके center में कौन present होता है बेटा? magnesium present होता है। Magnesium forms the central parts of the chlorophyll. It activates many enzymes, so it also act as a beta enzyme activator. Beta, it is a part of the chlorophyll, so it helps in the photosynthesis. Beta, it also participate in the transfer of phosphate ions. जो phosphate ion transfers होते हैं उनको कौन help करता है ट्रांसफर करने में? बेटा magnesium ions help करते हैं। and it also help in बेटा carbohydrate metabolism. कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट बॉडी के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम आयंस, बिकॉज दे एक्टिवेट द एंजाइम which help in the carbohydrate reduction. Now next is बेटा deficiency. Magnesium is mobile nutrient. बेटा mobile nutrient है तो पहले कौन सी लीव शो करेंगी? ओल्ड लीव्स इफेक्ट शो करेंगी, देन कौन सी करेंगी बेटा? यंग लीव्स करेंगी। बेटा इट ऑल्सो कॉज इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसका क्या मतलब है बेटा? जैसे ये अगर एक लीव है, इसके बीच में वी नो ऐसे वेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो इन वेन्स की येलोइंग हो जाएगी बेटा, येलो कलर वेन्स। सो होल plant leaf will be green but the veins will be shown in yellow in color. That is called as intervenal chlorosis. Leaf remain in green but the tissue between the veins become yellow. बेटा अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा बेटा? पूरी लीफ ही येलो हो जाती है। नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ द लीव्स। द फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो डिक्रीज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस। मैग्नीशियम कि अगर हम की पॉइंट्स एक बार दोबारा डिस्कस कर लें तो बेटा सेंट्रल एटम क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है, मीन्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बेटा डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? इंटरवेनल क्लोरोसिस कॉज करती है, और वो भी पहले ओल्ड लीव्स में शो होगा as compared to young leaves. Now let's talk about next macronutrient beta, that is sulfur. Sulfur बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का एंड प्रोटीन्स का। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड और प्रोटीन कौन से होते हैं बेटा? जिसके अंदर सिस्टीन और मिथ्योनिन होता है। तो सिस्टीन एंड मिथ्योनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। तो जो सिस्टीन और मिथ्योनिन को मिला के बेटा प्रोटीन्स बनेंगे, उसका भी ये कंपोनेंट होगा। It also acts as a coenzyme and it is present in certain vitamins. Beta, why it is important? It is important for protein synthesis, enzyme activity, metabolism and formation of vitamins and coenzymes. कुछ vitamins plant body में और coenzymes किसकी वजह से बनते हैं बेटा? सल्फर की वजह से बनते हैं। अगर हम deficiency की बात करते हैं तो बेटा it is immobile मीन्स इसके अंदर कौन पहले शो करेगा डेफिशिएंसी? यंग लीव्स शो करेंगे सिम्टम्स बेटा, फिर करेंगे उसके बाद ओल्ड लीव्स करेंगे। दैट इज इमोबाइल न्यूट्रिएंट है बेटा। सिम्टम्स में क्या आ जाएगा? क्लोरोसिस आ जाएगी, दैट इज येलोइंग ऑफ द लीव, रिड्यूस ग्रोथ। पेल ग्रीन और येलो यंग लीव्स, जितनी भी न्यू यंग लीव्स डेवलप होंगी वो क्या होंगी बेटा? पेल ग्रीन कलर की होंगी या येलो कलर की हो जाएंगी। देयर विल बी रिडक्शन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा अगर सल्फर हम देखें तो किसका पार्ट है? सिस्टीन और मिथ्योनिन का पार्ट है और प्रोटीन्स का पार्ट है। ये दोनों क्या है? अमीनो एसिड्स हैं। कौन से अमीनो एसिड्स हैं? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। डेफिशिएंसी क्या करती है बेटा? क्लोरोसिस कॉज करती है, स्पेशली किसके अंदर? यंग लीव्स के अंदर। होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू। इन नेक्स्ट सेक्शन बेटा वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बाय।